Assalamualaikum everyone. Walaikum salam, man. Walaikum salam. I've uploaded the midterm marks, and once you've taken a look, I'm going to give you an assignment, and then we'll be done. मिस क्लास के हाईएस्ट 23 है इसमें। I think so. 23 highest, I think. So I'm going to start the lab. This is lab, आपका जो lab का text book है, this is lab number 7 from that. तो अगर आपने उसके अंदर से extract हुआ हुआ कुछ part, if you want to take a look at it and do the other parts as well, तो आप text book के अंदर देख सकते हो. But basically आप लोगों को इसके अंदर से array वाली implementation, एक application और एक थोड़ी सी variation queue के ऊपर है, वो आप लोगों को assignment के अंदर दी गई है. So you know from your lectures कि ये first in first out data structure है जिसको अब आप लोगों ने implement करना है, जिसके अंदर you're going to be mainly जो आपके पास operations implement हो रहे होंगे, those are going to be the on queue and the dequeue operations, which would work something like this के A को on queue करते हो तो आपके पास, so again it's you actually imagine this like a real world queue, and that's the easiest way to visualize it. A आपके पास आ जाएगा, on queue B किया तो B उसके पीछे आ जाएगा, on queue C किया तो C उसके पीछे आ जाएगा. Now if somebody says के DQ करो, which means take somebody out from the queue, the only element that you can take out from the queue is the one जो कि सबसे आगे आपके पास उस वक्त है. So if you have A at the front and you're asked to DQ, you'll be left with BC. यहाँ पर अगर आपसे कोई DQ कहेगा तो you're going to be left with C. इस जगह के ऊपर अब C आपका front बन चुका होगा और इस जगह के ऊपर आपका B front बन चुका होगा. So again template वाला part जो है वो मैंने optional रखा हुआ है. You don't have to make it generic, but अगर आप लोगों ने templates कर लिए हैं तो उसको generic बना दो, because again data structures का को अगर आपने practically use करना है तो you need to have them in template form.
आपकी क्यू डेटा आइटम्स जो हैं अगेन यू नो दैट दे आर लीनियरली ऑर्डर्ड फ्रॉम लीस्ट रिसेंटली एडेड at the front to the most recently added at the rear of the list. और डेटा आइटम्स जो हैं वो रेयर के ऊपर ऐड होंगे, उस ऐड करने को आप बेसिकली एक ऑन क्यू ऑपरेशन के नाम से रेफर करते हो, एंड दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू। और जब आप रिमूव करते हो तो बेसिकली यू आर सेइंग दैट वी आर डीक्यूइंग द ऑपरेशंस दैट यू वांट टू इम्प्लीमेंट आर। तो अभी मैंने ये नहीं लिखा कि एरे करनी है या लिंक लिस्ट करनी है, लेकिन आप लोगों ने एरे करनी है। But in either case, you are going to have the same operations with minor differences के जिस वक्त वो लिंक लिस्ट होगी तो उस वक्त आपको ये मैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस वक्त आप वो कर रहे हो, एरे कर रहे हो, so you are going to have a max number जिसको आप by default किसी भी अपनी मर्जी के नंबर के ऊपर सेट कर सकते हो। You are with the constructor, you are going to create an empty queue and you are going to allocate enough memory for the queue containing max number data items if necessary। इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि basically ये जो specification है, this is supposed to be for either kind of an implementation, so you have to decide कि इस वक्त आपकी वाली ये implementation है जिसके अंदर आपको memory allocate करनी है, उसी वक्त सारे के सारे क्यू की memory allocate कर देनी है, या फिर जैसे जैसे आप on queue कर रहे होगे उस वक्त हो रहे होगे। So what this does is it allocates enough memory for the queue containing max number data items. So if you're doing your array implementation, so yes, it is necessary over here. If you are using your linked list implementation, तो यहाँ पर आपने सिर्फ linked list को initialize कर देना, आपने memory allocate नहीं करनी, because you know linked list allocation के linked list implementation के अंदर every time you insert something तो वो उसके हिसाब से आपको एक element add होगी और उसके लिए memory allocate होगी। So again we are doing an array based implementation, so इस वक्त आप लोगों के लिए max number भी necessary होगा और इस वक्त constructor के अंदर ही सारा कुछ allocate करना necessary होगा। Copy constructor आपने बनाना है which initializes the queue to be equivalent to the other queue object. So let's do the copy constructor for this assignment because इस वक्त आपके पास array और वो इतना difficult नहीं होगा, so you should be able to do it easily. So एक copy constructor बना लो, or you can make either one of these, either make an equals का operator overloading वाला function or make this, whichever syntax you're comfortable with. You know दोनों के अंदर वो एक ही चीज रही होगी, but just implement any one of them ताकि आप उसको end में demo करके देख सको। Your destructor is going to deallocate the memory that you use to store the queue. उसके बाद on queue के अंदर करना है, so whatever जिस किस्म का भी आपने queue बनाया हुआ है, because ये generic specification है तो इधर data type लिखा हुआ है, but अगर आप generic नहीं बना रहे होगे, if you've written int over here, तो आप यहाँ पर int pass करोगे, and that you're going to check कि queue आपका full तो नहीं है, और अगर आपका queue full नहीं है तो your new data item is going to go in at the rear of the queue. उसके बाद आपने करना है dequeue, so you cannot dequeue if your queue is empty, so check for that and then remove the least recently added front data item from the queue and return it. So थोड़ा सा इस वक्त आपकी implementation is slightly different from the one that we did from your theory textbook. So आपने अब assignment के लिए इसके हिसाब से अपना implementation करना है कि dequeue जब आप करोगे, return the whichever element that you dequeued from the queue. Clear जो है वो सारे के सारे queue को आपको clear कर देगा और reset कर देगा, तो जो भी आपने अपने variables रखे हुए हैं queue का track करने के लिए वो सारे के सारे अपने initial position के ऊपर आ जाएंगे। इस empty के अंदर आपने check करना है कि queue empty है या नहीं, और फिर एक boolean return कर देना। full के अंदर आपने check करना है full है या नहीं, again because you have an array based queue तो your queue can certainly be full. Show structure आपने बनाना, so show structure is not, it's not a queue function again, लेकिन show structure आपने debugging के लिए बनाना है ताकि आपको clearly नजर आ रहा हो कि आपका queue किस तरीके से काम कर रहा है, इस वक्त इसका front किधर है और इस वक्त इसका rear किधर है। So what I would, again इस पे specification नहीं लगी हुई, but you do something like this कि अगर मैं कहती हूँ queue print करो और आपके queue के अंदर ये values पड़ी हुई हैं, तो write them down like this. We are going to assume ये आपके queue का front है और ये आपके queue का end है,
but because this is going to be आपने print करना है, this is not how your array is necessarily going to be. Your array could be, जब आप इसको लिख रहे हो, तो it could be that your array actually looks like this, given that this is the front और ये आपका rear है. So can you see how Ma'am, this? why would it look like this? Because we अगर हम have, sequentially data store कर रहे हैं तो because हमने did you were you in the last lecture? Q वाले lecture आपने लिया? So we spoke about a circular queue, or we spoke about a circular an implementation of the queue जिसके अंदर आप circular तरीके से अपने elements डालते हो, ठीक है? So what is going to happen is कि अगर आप इसके अंदर कुछ values डाल रहे हो 1 2 3 4 5 6 आपका queue का space खत्म हो गया, right? yes, you don't need space over here. If I say कि आप एक element DQ कर दो, so I'm going to say इसको भी DQ कर दो, and then I say एक और element DQ कर दो, मैं कहूँगी इसको भी DQ कर दो. अगर तो हम array को बहुत ही जिस तरह से है उसी तरह से इस्तेमाल करें तो even though I have 2 empty spaces left over here, उसके बावजूद if somebody says on queue something into my queue, मैं इस जगह के ऊपर तो डाल नहीं सकती, कुछ यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है? But if I know that I'm only using up 4 spaces, I can start using this part of the array, right? जो अगर वो DQ होने के बाद available हो गया मेरे पास. okay. Because I don't want to do this के अगर तो मैं सिर्फ array को बस ऐसे ही use करूँगी ना जैसे है, उसका मतलब है कि I can just put in this number of elements और उसके बाद बेशक मैं सारी DQ भी कर दूँगी तो फिर मैं वापस एक तरीका ये था. So एक बहुत again this is from the lecture कि एक चीज तो आप ये कर सकते हो कि if आपके पास ये elements पड़ी हुई हैं और आपको कोई कहता है कि इसको DQ करो, तो one thing that you could do which you were kind of already doing in assignment 1 was कर देंगे सारी. आप ये कर सकते हो कि 3 को इधर मूव कर दो, 4 को इधर मूव कर दो, 5 को, और फिर आपकी आखिरी वाली जगह खाली रह जाएगी. So this is kind of a obvious solution ये लगता है, but when we discussed the solution we said that this is going to be really tedious efficiency wise. processor के ऊपर जो आप load डाल रहे हो वो बहुत ज़्यादा है, because every time you are removing an element आप कह रहे हो बेशक इस queue में 100 elements हैं, 10 elements हैं, 12 elements हैं, every time you remove an element you are going to take a jump of 100 or 10 or 12 because वो आपने सारी की सारी elements move करनी है. So instead of doing that movement and instead of saying कि यहाँ पर जगह ही नहीं है तो मैं तो कुछ add ही नहीं कर सकती, you are going to keep track of आपकी जगह कौन सी पड़ी हुई है खाली और उसके हिसाब से आप एक circular queue बना दोगे जिसकी वजह से you could have an array which looks like this, लेकिन इसकी queue interpretation ये होगी 4 है पहले, 6 है और फिर क्योंकि आपके पास ये जगह बाद में खाली हो गई होगी तो उसके अंदर फिर आपने 12 और 2 डाला होगा. So you are going to be reading like this, reading it like this. पहले 4 पढ़ोगे फिर 6 पढ़ोगे and your F and your R pointers are going to tell you कि कहाँ से पढ़ना शुरू करना है और कहाँ तक जाके end करना है. So show structure again. एक सवाल था कि जब ये हम DQ करते हैं, अब देखें एरे के अंदर ऑब्वियसली क्या नाम है डीलिंग तो हम कर नहीं सकते, तो DQ का मतलब यही है कि हमने जिस क्या नाम है जिस भी एरे के इंडेक्स को DQ करवाना है वहाँ पे हम कोई फिक्स वैल्यू डाल देंगे सपोजिटली. एरे के अंदर ये DQ करने का मतलब सिर्फ DQ की इम्प्लीमेंटेशन में ना आपने सिर्फ ये करना है, ये हटा, इसको DQ करने का यही मतलब है ना कि इसको हटा दो, राइट? मैम वो तो ठीक है, लेकिन अब लेकिन जैसे नीचे आपने बनाई थी 1 2 3 4 5 6 की, ठीक है, और ये 1 और 2 आपने कहा मैंने DQ कर दिया, तो उस केस के अंदर आपने वैल्यू अंदर की चेंज की थी या आपने बस क्या नाम है आगे ले गई थी फ्रंट को अपना? मैंने सिर्फ only things that is telling me कि मेरे क्यू की शक्ल क्या है ना, that is F and R. इधर मैंने डिलीट इसलिए की थी because वो I was explaining the concept again, तो मैंने इधर ऐसे कट कर दिया
बट एसेंशियली इसके अंदर पड़ा रहेगा ये वाली वैल्यूज, एंड यू आर जस्ट गोइंग टू से कि आपका रेयर जो है वो यहाँ पर चला गया, आपका फ्रंट जो है वो इधर चला गया और आपका रेयर जो है इस जगह के ऊपर चला गया. तो ओनली दिस, इफ यू रिमेंबर योर एरे असाइनमेंट फ्रॉम द स्टार्ट, डू यू रिमेंबर कि सम ऑफ यू डिड डू दिस. आप लोगों ने किया था कि एवरी टाइम आप एरे के अंदर से कुछ डिलीट करते थे ना, तो आप कहते थे इसको 0 कर दो या इसको डैश कर दो या इसको कुछ कर दो. बट उस वक्त भी मैं आपको कहती थी कि किसी और यहाँ वाली एलिमेंट को अगर आपने हटाया तो उसको कुछ कर दो. ये यहाँ पे तो 3 आ जाता था. दिस इज योर अर्लियर असाइनमेंट. लेकिन उसके अंदर भी आप लोगों को मैंने कहा था कि जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको आपने वैल्यू इटसेल्फ को नहीं छेड़ना. The way that you know that this value is no longer significant for you was because आपने कह दिया होगा कि मेरे array का size अब 3 है. So जब मैं array की values count करूँगी तो मैं यहाँ तक count करूँगी बस. So I am not going to count this value at all. So array के अंदर भी आपको किस चीज़ से जब हमने array implementation की थी तो आपको आपके पास कोई n के टाइप का एक capacity का variable होता था कि total इसके अंदर इतने आ सकते हैं, और एक आपके पास n होता था कि इस वक्त इसके अंदर कितने पड़े हुए हैं, जिससे आपको पता चलता था कि जब मैंने यूजर को अपनी एरे लिस्ट प्रिंट करके दिखानी है तो योर n यूज टू टेल यू कि यहाँ तक जाके आपने रुक जाना है. यहाँ पर जो कुछ भी पड़ा हुआ है दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट फॉर यू, बिकॉज उस वक्त भी हमने बात की थी कि अभी तो आपने 4 डाला हुआ है ना, इसलिए 4 पड़ा हुआ है. लेकिन जब आपने एरे इनिशियलाइज भी किए तो उधर कुछ ना कुछ तो पड़ा होगा. The only reason or the way that you are basically handling some value written there that is not significant for you is by kind of specifying a way in which you know कि मेरी array की ये वाली values जो है वो मेरे लिए valid है. यहाँ पर जो कुछ भी लिखा होगा I don't really care because इस वक्त मेरी array का size n है. So उसी तरह से इधर से जब आप DQ करोगे तो you are just going to move your front index. So you will know once you've DQ'd this number, क्योंकि आपका f इधर आ चुका होगा तो आपको पता होगा कि मैंने पढ़ना ही f से शुरू करना है. So I'm just not going to read this value. So it's the same concept that we did when we did array, and I remember that some of you actually still did the filling in with some dummy value which you don't need to do. अगर आप array की specification follow कर रहे थे तो आपको उसको करने की जरूरत नहीं थी, और इधर भी अगर आप ये front और rear को update करने की सारी की सारी requirements follow कर रहे हो ना, तो then you won't need to kind of इसको blank करने की या जो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. So you create something like this जिसके अंदर so show structure आपने अपनी, because it's for your own debugging, so you see कि किस तरीके का करना है. इस तरह का आप करो तो basically show कि this is say कि आपका जो queue है वो इधर से start हो रहा है and this is like the back of the queue and you have this many elements left. So उसको कुछ बता दोगे इस वक्त उसका size इतना है. So at this point the size of our queue is 4 elements. So जो सी भी information आपको चाहिए अपने debugging के लिए उसको अपने show structure के अंदर डाल देना. If the queue is empty तो वो empty queue बता देता and so on. So again this is not, show structure is not technically something that you find in queues, but हमने अपने हर data structure के साथ इसको डाला है ताकि हम अपनी वो कर सकें, testing कर सकें. We're not going to do the linked list based implementation for this submission. Instead, we're going to do an array implementation, जिसके अंदर you're going to have the variables max size, front and rear, और फिर वो data items themselves जो आपने अपने queue के अंदर लिखने हैं. अगर आप template implement नहीं कर रहे तो इसको फिर आपने integer रखना है, because the application that I'm going to give you, that is going to require an integer for whatever calculations that need to be done. So this is your this is kind of your class का structure that you need to implement. ये आपको data members चाहिए होंगे, and again जो आपके लिए important वाली चीजें हैं वो basically ये वाली 2 चीजें हैं. करंट साइज की जरूरत नहीं पड़ेगी. किस चीज की? करंट साइज की. You can current size get करने की, ये आपके पास है.
If you want to keep गेट the लेंथ तो variable, हमें वो बताएगा ना कि कितने एलिमेंट्स अंदर हैं ऑलरेडी। जी तो मैम अगर हम फ्रंट या बैक भी करेंगे तो उसके अंदर डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए, क्या मतलब फ्रंट या बैक क्योंकि करोगे? मैक्स साइज हमारा बना हुआ है ना, हमारा करंट साइज तो बना हुआ नहीं है। अब मैंने वो आप 5 यूज वैल्यूज नहीं डाल दी करना। और पहला फ्रंट हटा दिया If you are saying, तो मुझे I, 5 ही दिखाएगा। if you want to say, ये तो हमेशा एक ही नंबर दिखाएगा, but if you want to say कि I want a variable जो कि मुझे हर वक्त मेरा साइज भी बताता रहे, you can add it. This is your requirement. लेकिन अगर आपको कोई थोड़ी बहुत चीज ऐड करनी है तो you can add it. If अगर आप मैम इन केस हम फ्रंट पे जो मतलब जो हमारा फ्रंट पॉइंटर है उसकी वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं, तो जो से भी है उसको फ्रंट ना देंगे, लाइक दैट फ्रंट, sorry, या अगर हम एंड में से इनकी, आई एम सेइंग कि फ्रंट या एंड में से अगर हम इनमें से कोई वैल्यूज डिलीट करते हैं, लाइक अकॉर्डिंग टू योर टेक्निक ना, कि वी शिफ्ट द अरे इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट ब्लैंक या कोई जीरो वैल्यू देने की बजाय अरे के अंदर, तो जब हम अगर फ्रंट को या एंड को करेंगे तो उस केस में हमें शिफ्ट किस तरह करना चाहिए अरे को? अच्छा, मैं वो जो शिफ्ट वाला कह रही थी ना, वो मैं आप लोगों को रिमाइंड करा रही थी कि एरेज में कैसे किया, ठीक है। इस दफा आप लोगों ने शिफ्ट भी नहीं करना, आप लोगों ने सिंपली ये करना। सो इफ यू रिमेंबर योर एल्गोरिथम वाज वर्किंग समथिंग लाइक दिस, कि आपने फ्रंट और बैक रखा हुआ है, एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज कि बैक का मतलब है, बैक टेल्स यू कि आपने कोई चीज ऐड कर दी। सो इफ आई ऐड समथिंग हियर, मेरी बैक अपडेट करके यहाँ आ जाएगी। देन इफ आई ऐड समथिंग एल्स, मेरी बैक मूव करके यहाँ पर आ जाएगी। मैं उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ ऐड करूंगी, मेरे क्यू के बैक का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। इफ आई नाउ से डी क्यू करो कुछ, तो द नंबर इज नॉट चेंजिंग, मेरा सिर्फ फ्रंट का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो रेयर जो बैक है वो जब स्टार्ट में जाती है वो कैसे फिर करेंगे शो, जब रे फुल हो जाएगी तो? पड़ेगी हमेशा फॉरवर्ड से पहले वैल्यू जाएगी। अगर तो एरे फुल हो गई है ना, सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज एरे फुल कर देते हैं। जब आपकी एरे फुल हो जाएगी, सो दिस इज गोइंग टू बी 4 5 6, एरे जब फुल होगी ना तो आपकी बैक यहाँ पर आ जाएगी, बिकॉज वी, इफ यू रिमेंबर, हमने एक मॉड ऑपरेशन डाला था ताकि जब आपने सिर्फ प्लस प्लस नहीं करना, अपने बैक को सिर्फ प्लस प्लस नहीं करना, अपने मॉड द साइज ऑफ द एरे करना है। सो दैट वाज अलाउइंग यू टू सर्कल बैक। अब जब आपकी ये इस वक्त आपकी बैक यहाँ पर आई हुई है, ठीक है, और हमने क्योंकि फ्रंट आगे कर दिया हुआ है, इस वक्त आपका साइज ऑफ द एरे क्या है? एक खाली जगह है ना आपके पास, तो यू आर गोइंग टू चेक, you can tell कि आपके पास खाली जगह है, और you will be able to tell from this n and this max size लेंथ वाली चीज, लेंथ फंक्शन। अगर आपने n डालना है तो आप n डाल लो, अदरवाइज लेंथ फंक्शन और मैक्स साइज से आपको के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त मेरे क्यू के अंदर, इवन दो 1 is written in here, अब मैंने उसको जान के रब काटा नहीं है because it's going to be written here, but you know because your f is over here, आपको पता है कि आपकी क्यू के अंदर जो सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम हेयर, फ्रंट से काउंट करना शुरू करना है आपने और फिर आगे जाते जाना है। बैक इज ऑलवेज पॉइंटिंग टू सम प्लेस जहाँ पर आप कुछ नई चीज ऐड करनी होती है आपने। So this is going to, so if you have both of these conditions being met, कि आपका array जो है अभी फुल नहीं है, आपका क्यू जो है वो अभी फुल नहीं है, और आपका बैक जहां पर भी पॉइंट कर रहा है वहां पर नई वैल्यू डाल दो। So if I say insert in this state, I am going to put the 7 over here. And if I say फिर से dq करो, तो जब मैं इसको insert करूंगी तो my back is going to move over here, और जब मैं एक और dq करूंगी my front is going to move over here. अब मुझे पता है कि मैंने अगेन, अगर मैंने अपनी इस एरे में से अगर मैंने अपने क्यू को इंटरप्रेट करना है तो मैंने एफ से शुरू करना है, 3 4 5 6, एंड देन आई सर्कल बैक until I reach back -1. So basically इसका एल्गोरिथम बहुत सिंपल होगा। एवरी टाइम यू डू दिस ऑन क्यू या डी क्यू, तो आपने अपने सिर्फ ये वाली जो दो वेरिएबल्स है ना, इनको अपडेट करना है, और उसके इनको ये चीज चेक करके अपडेट करना है कि आपके क्यू के अंदर जगह है या नहीं। द
the formula itself with the mod is written inside your lecture slides, और वहाँ से वो लेके आप, it's just one line. We did it in the last lecture. If you've forgotten, just go and review the last lecture again. But ये काफी simple किस्म की implementation है. Again, if this is still confusing you कि ये वाली चीज इधर लिखी होती है और उसको हम because वो आप लोग जब अपनी initial level implementations करते हो ना algorithms की, तो you do this कि इसको initialize करने के लिए हम सबको -1 कर देते हैं या कुछ कर देते हैं. And I think that's become a little bit difficult to let go. लेकिन just kind of see के ये चीजें लिखी रहती हैं. The only reason that you know कि इस स्ट्रक्चर को मैंने इंटरप्रेट किस तरह से करना है, वो आपको ये वाले 2 वेरिएबल्स बता देंगे. मैम ये और मैंने जो पुट फ्रंट वाला फंक्शन है जी, एक करके आप लोग बोलो. फ्रंट और बैक इंट पे चल रहा है, तो हमने भी सिर्फ अकॉर्डिंग टू इंट करना है या पॉइंटर बेस्ड है? इंटीजर पॉइंटर किधर है? वही मैं कंफर्म कर रहा था. अच्छा, ये डेटा टाइप डेटा आइटम्स किसके लिए दिया हुआ है हमें? This is whichever so for instance अगर आप इंटीजर करते हो ना और आपको यूजर कहता है कि मैंने 50 की एरे बनानी है, तो ये बेसिकली डेटा टाइप आपका इंटीजर बन जाएगा. एंड देन यू आर गोइंग टू से डेटा आइटम्स this is basically for dynamic memory allocation. So you're going to say data items is equal to new जो भी उसने कहा हुआ है int 100 या जो कुछ भी इसके लिए ये. So this is int का आपने पॉइंटर डिक्लेयर किया होगा ताकि जब यूजर इस क्यू को डिक्लेयर करे तो आप रन टाइम के ऊपर डिसाइड कर सको कि मैंने उस क्यू का मैक्सिमम साइज 10 रखना है या 100 रखना है या 1000 रखना है, जो कुछ भी रखना है. आपने एक हार्ड कोडेड एरे नहीं रखी हुई, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन वाली एरे रखी हुई. मतलब मैं यहाँ पे भी लिख ही सकता हूँ ना, इंट स्टैटिक और एरे का नाम लिख के बस छोड़ दूँ और बाद में फिर ये एरे का नाम है, ये एरे का नाम ही है. आपने सिर्फ अगर आपने वो नहीं करनी ना, अगर आपने टेम्पलेट नहीं बनानी और इसको इंट के लिए ही करना है, द ओनली थिंग यू आर गोइंग टू डू इज कि डेटा टाइप की जगह इंट रख दोगे, वो इंट पॉइंटर ही होगा, लेकिन कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने अपने पॉइंटर को ना डायनामिक मेमोरी एलोकेशन से उस पॉइंटर को एरे बना देना. दिस वी डिड इन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन पॉइंटर्स वाले लेक्चर में. ठीक है. दिस इज एन एरे. अगर मैंने इधर एरे रख दी होती और मैंने 10 लिख दिया होता तो इसका मतलब होता कि मुझे हमेशा 10 आई वुड हैव टू लिव विद 10 एवरी टाइम. सो आई वांट टू मेक दिस डायनामिक एट लीस्ट. So in your regular queue you have your on queue, you have your DQ and so on. Report whether the queue is full and everything. So आपने अपना queue बना के array वाला queue बना के टेस्टिंग कर देनी है. उसके बाद we are coming to our application. Give me a second. So this is your application, which is customer flow through a checkout line का आपने simulation करना है. So we are going to use, so I'm going to introduce the concept of simulating situations. इतनी मुश्किल situation नहीं हम simulate कर रहे हैं. It's going to be a very simple algorithm. But basically हम इस वक्त ना इस concept को थोड़ा सा touch upon करने जा रहे हैं कि जब भी किसी किस्म की कोई scientific observation या कोई scientific measurement होनी होती है, हमेशा आपके पास वो resources नहीं होते कि आप actual situation का data collect करो. So a lot of times you would have heard कि किसी चीज़ को simulation के through या किसी model के through ये determine किया गया कि this is what would happen in such a situation. So इस वक्त हम अपने queue को इस्तेमाल करके we are going to simulate basically customer queues at a checkout line. So checkout के ऊपर जो queue बना होता है उसको हम simulate करने लगे.
और बेसिकली हम काइंड ऑफ इस किस्म की चीज़ प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं कि अगर इस रेट के ऊपर कस्टमर्स आ रहे हो तो वी वांट टू गेट फिगर्स लाइक कि 10 मिनट के अंदर कितने कस्टमर सर्व हो जाएंगे, या फिर अगर इस वक्त इस तरह के कस्टमर्स आ रहे हो तो सबसे मैक्सिमम वेट किसको करना पड़ सकता है. सो लेट मी ट्राई टू सी के और लेट मी ट्राई टू शो कि किस तरीके से इसको हमने मॉडल करना है. सो वी आर गोइंग टू इसका एप्लीकेशन ये हो सकता है कि somebody is setting up a checkout store, a grocery store, and they want to kind of before setting up the store they want to calculate or they want to get a good figure of कि उनको कितने checkout counters रखने पड़ेंगे तो उससे उनका optimize हो जाएगा customer handling का time. So इस किस्म के situation solve करने के लिए you could use a queue or you could use kind of any data structure, लेकिन इस वक्त because हम queue कर रहे हैं तो हम actually एक literal queue को model करने लगे हैं उसके ऊपर. So we are going to use a queue data structure to simulate flow of customers through a checkout line at a store. और उसको मॉडल हमने इस तरह से करना है कि अगेन अब हम सिमुलेशन कर रहे हैं. सिमुलेशन का पर्पस ये होता है कि आपके पास रियल वर्ल्ड के अंदर या टाइम नहीं होता या रिसोर्सेज नहीं होते कि वो चीज़ एक्चुअल में चेक कर सको. सो वी वांट टू, पहली चीज़ जो हमें इसके अंदर करनी होगी, हमें किसी तरीके से कोई रिप्रेजेंटेशन लेनी है इन आवर कोड व्हिच इज गोइंग टू से कि कुछ टाइम गुजर गया. सो उसके लिए we are going to use a loop or we are going to be using several loops, but we are going to say कि जब आपका एक दफा loop चल जाता है तो we are going to take it to mean or we are going to take it to model the passage of 1 minute. So इस simulation के अंदर आपको सारे parameters दिए जा रहे हैं just so that you can understand. इसके अंदर आपको बहुत creative thinking नहीं करनी है कि simulation कैसे करनी है. You are going to be given the parameters and you're just going to have to fit them into your simulation. So वो parameters ये हैं कि एक loop की एक iteration चलने का मतलब है कि 1 मिनट गुजर गया, and then through the queue itself we are going to imagine कि queue जो है queue के अंदर हर data item जो है वो एक customer है. So I did say कि आप लोगों ने int से काम करना है, but you are going to see कि जिस तरीके से ये प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हुई भी है, जो कि होती है जब चीज़ें मॉडल होती हैं तो आप कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई कर देते हो. उस सिंप्लीफिकेशन के अंदर हम एक कस्टमर को एक नंबर के थ्रू एक्चुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी नीड टू कीप ट्रैक ऑफ. सो आपको अब अगेन अदर पैरामीटर्स दैट यू आर गेटिंग टू क्रिएट योर सिमुलेशन इंक्लूड दीज वंस. सो हमने एक तो कह दिया कि एक लूप के थ्रू 1 मिनट आपने मॉडल करना है. अब हर मिनट में आपने ये चीजें मॉडल करनी है कि एवरी मिनट one customer is served and leaves the line, and again you have एक कस्टमर सर्व होके लीव तब कर सकता है जब एटलीस्ट आपके पास एक कस्टमर उस वक्त क्यू के अंदर बैठा हो. सो दिस इज कस्टमर ने आपकी क्यू को लीव इस वक्त करना है. So every minute one customer is going to get served. Join कैसे customers ने करने हैं? So join करने का आपके पास formula जो दिया हुआ है, that is कि हर मिनट के ऊपर you can either get 0 customers joining the line, or you can get 2 customers joining the line, or you could get 1 customer joining the line every minute, जहाँ पर you have a 50% chance कि कोई customer भी नहीं आएगा. You have a 25% chance कि सिर्फ एक कस्टमर आएगा, and you have a 25% chance कि 2 कस्टमर्स आएंगे. So this is what you've been told कि इस तरीके से आपने अपने क्यू को. So again वो जब आप लोगों ने अपना क्यू बना के टेस्टिंग करनी है, वहां पर तो आप मैन्युअली कर रहे होगे कि क्यू में एक नंबर डाल दो, क्यू के अंदर से एक नंबर निकाल दो. इसके अंदर आपने लूप के थ्रू कस्टमर को निकालना है और लूप के अंदर ही किसी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कस्टमर को ऐड करना है लूप के अंदर, क्यू के अंदर. सो योर बेसिक एल्गोरिथम इज दिस: टू कंडक्ट अ सिमुलेशन फॉर n minutes. सो जस्ट टू काइंड ऑफ सी कि अगर n minutes के लिए आपका ये काउंटर चलता रहता है तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन.
उसको देखने के लिए you are going to initialize your queue to its start state, and while the simulation is not done, so ये while जो ये इस तरह से चलेगा कि again start from 1 minute and go up to n minutes. So n अगर आपने 15 रखा हुआ तो वो 15 दफा चलेगा, अगर आपने 100 रखा हुआ तो 100 दफा चलेगा. जो भी आप कह दोगे कि इतने टाइम के लिए सिमुलेशन अपनी रन करो तो उतनी दफा आपका लूप रन होगा. So every time you are going to increment your n को अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो आपने उसको एक एक करके करते जाना. If your queue is not empty, so पहले उसने किया हुआ है implement के queue के अंदर से किसी को निकालना कैसे. So first of all check कि आपका queue empty तो नहीं है, और अगर आपका queue empty नहीं है तो front वाले person को आप कह दो कि ये फारिग हो गया and you remove that from the queue. दो चीजें हमने करनी थी कि लोगों को डालना था और लोगों को निकालना था. So ये तो आपने निकाल दिया. How are you going to put people in according to the percentage that has been given to you? Percentage आपको दी गई थी कि 50% चांस था कि कोई भी नहीं आएगा. Let me write down here. 50% का मतलब है कि 50% of the time nobody is going to come in, और फिर 25 के लिए 1 है, और 25 के लिए you have 1 again. So इसको simulate करने के लिए what you are going to do is you are going to keep a variable called k, और उसको आपने randomly generate करना है, because आपने निकालना तो एक ही कस्टमर है हर वक्त, लेकिन आपको जो एंट्री का क्राइटेरिया दिया हुआ है ना वो एक परसेंटेज के हिसाब से दिया गया है कि एवरी टाइम एन आइटरेशन अकर्स, या ये चीज हो सकती है या ये चीज हो सकती है या फिर ये चीज हो सकती है, सॉरी इधर 2 था, या ये वाली चीज हो सकती है. इसको आपने अब इम्प्लीमेंट कैसे करना है. यू कीप अ के, और के को आप एक रैंडम नंबर जनरेट करके दो बिटवीन दीज 4 वैल्यूज, जिसका मतलब है कि इन चारों की अकरेंस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. सो या 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा. आपके पास ऑप्शंस 3 हैं और आपकी ऑप्शंस डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरह से हैं कि 50% 0 है. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज के अगर आपने इनमें से 2 नंबर्स जो हैं वो 0 के ऊपर मैप कर देना. सो यू आर गोइंग टू से कि अगर ये आ रहा है या ये आ रहा है, so if you are following this exactly you will say 0 and 3. अदरवाइज आपका मकसद सिर्फ ये है कि ये जो 4 चीजें आपके पास आनी है इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ, उनमें से 2 को तो आप कह दो, अगर ये भी नंबर आ जाए तो आप कह दो कि कोई कस्टमर नहीं ऐड हुआ क्यू के ऊपर. अगर ये वाला वैल्यू भी आ गया तो यू से कि कोई कस्टमर भी नहीं आया लाइन के ऊपर. लेकिन अगर के 1 है तो इसका मतलब है यू हैव 1 person एडेड टू द क्यू. अगर के की वैल्यू 2 आ गई है उस टाइम के लिए तो यू आर गोइंग टू ऐड 2 people टू द क्यू. सो दिस इज, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज गोइंग टू बी की in how your simulation changes over multiple executions, because ये randomly calculate हो रहा है, तो over different executions आपके queue के अंदर different amount of people add हो रहे होंगे. remove तो हमेशा एक ही हो रहा होगा because उसके ऊपर कोई probability नहीं डली हुई, लेकिन आपका queue के अंदर से remove जो है वो every time you are going to have जो addition है, every time you are either going to have a 0 customer added, 0 customer added, 1 customer added or 2 customer added. and you can see कि इसके अंदर से 50% probability जो है वो, क्योंकि आपने 2 numbers को assign कर दिए, तो 50% of the time nobody is going to get added to the queue. 50% of the time either 1 हो जाएगा या फिर 2 हो जाएगा. so थोड़ी सी complex percentage की variation जो है उसको उसने simply 4 numbers के ऊपर डाल के और उन 4 numbers की mapping करके ensure कर दिया है कि आपकी क्यू के अंदर लोगों की एंट्री जो है वो इस तरीके से represent हो जाए. So we have used a simple mathematical formula to model customers coming into a queue and then being served and leaving the queue. और जब आपका लूप एक दफा चल जाएगा, जब एक आइटरेशन चल जाएगी, तो you are going to be updating some queue statistics. और वो queue statistics क्या है? You have to count. So at the end of when your loop is done, I want you to get me the number of customers you served for that execution. So this is one of the statistics that you have to calculate. So ये तो आप simply करोगे every time you do a DQ.
तो आपने कहना है कि मेरा नंबर जो है वो प्लस प्लस हो गया. So for every DQ and practice, क्योंकि आपने every DQ you're doing when you're removing somebody from the loop, लेकिन हर वक्त आपके from the queue, लेकिन हर वक्त आपके queue के अंदर कोई person नहीं है. So you are going to do this only when you're removing somebody from the queue. उसके बाद दूसरा स्टेटिस्टिक वो कह रहा है कि टोटल लेंथ ऑफ टाइम सारे के सारे कस्टमर्स ने, इन सारे कस्टमर्स ने जिनको आपने DQ कर दिया है, उन्होंने टोटल लेंथ ऑफ टाइम क्या स्पेंड किए वेटिंग इन लाइन. सो दिस इज, अब वी वांट टू सी कि ये अब किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे. सो दैट मीन्स कि इसको हमें हर कस्टमर के लिए किसी तरीके से कैलकुलेट करना है ताकि एंड में मैं इसका सम दे सकूं. और उसके बाद मैंने देना है द मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम एनी ऑफ दीज कस्टमर स्पेंट वेटिंग इन लाइन. सो दैट मीन्स कि मैंने हर कस्टमर के लिए उसका वेट टाइम स्टोर करना है. हर आइटरेशन में व्हेन आई एम डन, तो हर आइटरेशन के अंदर मैंने वेट टाइम जो है वो अपडेट करते जाना है. एंड एंड के अंदर मैंने सारे के सारे कस्टमर्स जिनको मैंने DQ करते जाना है, उनका वेट टाइम एक क्यूमुलेटिव वेरिएबल में डालते जाना है. सो एवरी टाइम आई DQ somebody, आई एम गोइंग टू से इसने इतना वेट किया था, add this to the total weight. इसने इतना वेट किया था, add this to the total weight. And when I'm making that cumulative value, साथ साथ मैंने चेक करते जाना है कि अगर ये जो अभी मेरे पास नई वैल्यू आई है which I am adding to this, is this equal to a max value that I am holding on to? अगर ये उससे बड़ी आ गई है तो फिर मैं इसको अपडेट करती जाऊंगी ताकि every time at the end of the loop मैं पहुंचती हूँ तो मेरे पास मैक्सिमम वेट टाइम जो है वो एक अलग वेरिएबल के अंदर होना चाहिए और क्यूमुलेटिव वेट टाइम जो है वो एक अलग वेरिएबल के अंदर अपडेट हो गया होना चाहिए. So given, so you would think कि मैंने कस्टमर स्टोर करना है तो पहली चीज आपके ना मैंने कस्टमर्स का क्यू सिमुलेट करना है. The first thing that comes to your mind is कि probably I need to put customers in the queue. और फिर कस्टमर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालनी है which means कि मुझे कस्टमर की क्लास बनानी होगी. The thing is कि सबसे पहले तो आप देखो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. आपकी रिक्वायरमेंट इज pretty simple. It's just asking you for wait times. So can we actually do this? आपको सजेशन जो दी हुई है कि ये वाली चीजें जो आपने करनी है basically, what is the only thing that you need to keep track of for each customer? You don't need to do things like customer का अगर आप वैसे सोचते हो ना ये क्लास है, you would think कि maybe मुझे कस्टमर का नाम स्टोर करना है, कस्टमर का बिल स्टोर करना है, लेकिन this simulation is not asking for any of that. It is only asking you to say के इनके वेट टाइम्स करो चेक. So to compute के आपके कस्टमर को कितना वेट करना पड़ा है once they entered the loop, what would you need to do? Given कि आपका वो जो loop है वो एक मिनट को represent कर रहा है. So to compute how long a customer waited to be served, you just need the difference in time from when the customer arrived to when the customer exited the queue. इसके अलावा आपको कोई भी जरूरत नहीं चाहिए. So you can actually represent the customer in the queue simply by using the simulated time the customer entered the queue. You can do this. अगर आप simulation चला रहे हो और अभी वो n is equal to 1 वाला ही iteration चल रहा है और आपके पास कस्टमर ऐड हुआ है तो you just say कि क्योंकि वो n is equal to 1 के ऊपर ऐड हुआ था तो this customer is being identified by 1. उसके बाद सेकंड के ऊपर इवन अगर 2 भी आ गए तो दैट इज फाइन. आपके पास 2 कस्टमर्स आ गए जिनका एंट्री टाइम था 2. सो वी आर जस्ट यूजिंग द एंट्री टाइम टू फिगर आउट कि आपका कौन सा कस्टमर किस वक्त आया एंड देन वी कैन यूज दैट टाइम टू फिगर आउट कि इसको कितनी देर वेट करना पड़ा. सो सेकंड लूप आपका चल गया, फिर थर्ड लूप चला. लेट्स इमेजिन कोई भी नहीं आया, थर्ड दफा भी कोई नहीं आया, फोर्थ दफा भी कोई नहीं आया. अब अगर ये अब DQ होता है और फोर्थ वाली आइटरेशन चल रही है तो हाउ कैन आई टेल कि इसको कितनी देर वेट करना पड़ा. अगर मैं 4th मिनट में इस कस्टमर को निकालती हूँ and I'm saying that this number is representing the time at which this customer entered this queue and this is the time that is the current time. तो बेसिकली ये चीज कैलकुलेट करने के लिए कि इसको मैंने कितनी देर वेट कराया है DQ करने से पहले, आई जस्ट नीड टू डू अ 4 - 1.
So सारी की सारी कैलकुलेशन करने के लिए आई जस्ट नीड एवरी टाइम आई पुट समबडी इनटू द क्यू, तो उस वक्त की n वैल्यू मैंने स्टोर कर देनी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए. एवरी टाइम आई टेक समबडी आउट फ्रॉम द क्यू, मैंने उस वक्त वाली n वैल्यू के अंदर से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, एंड दैट विल टेल मी कि इस पर्सन ने इस क्यू के अंदर इतनी देर वेट की थी. सो अगेन इफ आई हैव समबडी एंटरिंग एट 7 एंड लीविंग एट 10, तो आई नो कि इसने 3 मिनट्स वेट किया क्यू के अंदर. तो अब मेरे पास हर पर्सन की डी क्यू करते वक्त आई नो हाउ लॉन्ग दे वेटेड, सो आई नो द वेट टाइम. Using that wait time, I can do the cumulative weight calculation, and using that wait time, I can do the max weight calculation. ये सारी की सारी 3 lines of code के अंदर loop के end के ऊपर मेरे पास हो जाएगी. So what I'm doing is, आपको मैंने इसका framework दे दिया to how to run this. So you are going to do, if you have not done your template, तो आपने सिर्फ ये लिखना है, आपने ये भी नहीं लिखना होगा. अगर आपने टेम्पलेट नहीं की और आपने इंटीजर का क्यू बनाया, जस्ट क्रिएट योर क्यू. You are going to need a bunch of variables to keep track of people arriving and leaving. So you need simulation को मैंने run कितनी देर करना है इस वक्त, what is the time right now, what is the arrival time for a particular customer, what is the wait time for a particular customer, total number of people served, total weight सारे के सारे लोगों का, maximum weight and number of arrivals. So every time that you run this, you are going to do this. आपने सिर्फ यूजर से पूछना है कि इसको कितने मिनट्स के लिए, कितनी मिनट्स की सिमुलेशन करनी है. So let's say if I say 10, तो वो सिमुलेशन लेंथ के अंदर चला जाएगा. आप लोगों ने 10 से बड़ी वाली सिमुलेशंस करनी है, because 10 is not going to give you very nice numbers. If you say 10, तो ये loop 10 दफा चलेगा, and you are going to do this, the list of kind of वो जो algorithm पीछे लिखा हुआ था उसके हिसाब से. First of all, DQ the first customer in your line, अगर वो exist करता है. Total served को increment कर दो at the time that this customer waited to the total wait. Max weight को update करो अगर अभी वाला wait time जो है वो आपके पास previous वाले से ज़्यादा आ रहा है, and we can see कि हमने इसको 0 के ऊपर initialize किया हुआ है. The first one that you get, it is going to get entered in, और उसके बाद अगर उससे बड़े आते रहे तो वो इसको update करते जाएंगे. Then determine the number of new customers. वो जो K वाली चीज़ थी कि आपने K को 0, 1, 2, 3, 4 के अंदर में से एक रैंडम नंबर देना है, तो वो K की कैलकुलेशन आपने यहाँ से करनी है, और फिर जो भी K वाली आपकी वैल्यू आ गई है उसके हिसाब से either you are going to do 1 on Q or you are going to do 2 on Qs, और 50% of the time आपकी K की ऐसी वैल्यू आएगी कि you are not going to put any people into your queue at all. एंड के अंदर आपने करना है सिमुलेशन, जब आपकी रन हो जाएगी, you are going to print out, और मैंने आपको एक फाइलिंग वाली रिक्वायरमेंट भी दी हुई है जो आगे लिखी हुई है. You are going to print out कि इस सिमुलेशन में मैंने इतने कस्टमर सर्व किए, उनको इतना वेट करना पड़ा, और उनकी लॉन्गेस्ट वेट जो थी वो इतनी थी. जो आपकी फाइलिंग की रिक्वायरमेंट है, that is this, that when you test this, you write your code in such a way कि वो अपने stats स्क्रीन पे तो प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो इस तरह से उसको फाइल के अंदर भी लिखता जाए. So if you do 10 simulations, तो आपके ये stats गायब नहीं हो जाने चाहिए, और if you do 15 simulations or 30 simulations, वो जो stats हैं वो इसके नीचे ऐड होते जाएं. So you can tell over here what you've done is, एक simulation की है n is equal to 10 की, आपके पास ये नंबर्स आ गए. मेरे नंबर्स करेक्ट नहीं है, सो डोंट ट्राई टू मैच विद दीज. एक तो नंबर एक तरह के आएंगे ही नहीं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि 10 मिनट्स में आई कैन नॉट सर्व 50. तो ये मैंने सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए लिखा हुआ है, नंबर्स मैंने वैसे ही टाइप इन कर दिए थे. Was everybody following me till before the filing? Yes. So आपके पास, so without the filing, you are going to print, एक सिमुलेशन के नंबर्स आपने प्रिंट कर देने, बट यू आर ऑल्सो गोइंग टू पुट फाइलिंग इन, ताकि इस फाइल के अंदर क्यूमुलेटिवली आपके नंबर्स ऐड होते जाएं,
and what you are going to do is कि just create a file, उसके ऊपर आपने condition लगाई होगी कि अगर ये फाइल पहली दफा बन रही है तो उसके अंदर टॉप लाइन के अंदर n served, average wait और longest wait लिख दो. अगर ये फाइल पहली दफा नहीं बन रही तो you are going to append to the file, जिसका मतलब है कि आप अगली लाइन के अंदर अपनी next execution की stats लिख दोगे. And I was saying कि ये जो मैंने sample दिया हुआ ये मैंने formatting की reference के लिए दिया हुआ है, because this you are not ever going to get at least this number कि आपने 10 minutes के लिए simulation चलाई है और उसके अंदर 50 people serve हो ही नहीं सकते according to the algorithm that we went over just now. So ये वाले numbers तो आपको कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा आपके numbers जो हैं, because they're simulations, तो वो simulations different किस्म के number देंगी आपको. They're not going to be the same numbers. What you're going to do for your evaluation is just come with at least 10 simulations that have been run and that are recorded in your file. ताकि evaluation में ये भी हो सकता है आपको कह दें कि extra simulations run करो, and also आपकी फाइल खोल के आपके numbers भी check किए जा सकते हैं कि आपके simulation के value किस तरह से आ रहे हैं. So write your stats to a file, and अगर आपकी फाइल पहली दफा खुल रही है तो उसकी header line बनाओ, otherwise उसको line by line उसके अंदर आप append करते जाओ. So your simulation is done. We are just going to, आपकी जो पीछे मैंने वो दी थी specification दी थी, we want to do a slight variation on that, which is basically this is another data structure, लेकिन ये इतना similar है queue के इसको अलग से नहीं पढ़ा जाता. So a deck is basically a double-ended queue. So regular queue is this कि front के ऊपर से remove होगा और back के ऊपर add होगा, लेकिन deck जो है that is a double-ended queue, is a linear data structure that allows data items to be inserted and removed at both ends. And adding the operations described below is going to transform our regular queue into a deck. So for the last part of the assignment, आपने DQ और OnQ के साथ साथ एक put front का भी वो करना है, function add करना है, और एक get rear का भी function add करना है. So this means you are now going to be able to remove things from the end of the queue, and you're going to be able to push people right at the front of the queue as well, or elements right at the front of the queue. So यहाँ पर थोड़ा सा algorithm आपको figure out करना पड़ेगा कि आपने अब put front और get rear के अंदर अपने front और rear वाले pointers, again इस implement because we're doing array implementation, तो ये actual वाले आपके pointers नहीं है. इधर जब मैं pointer कह रही हूँ तो इधर मेरे pointer का मतलब है कि वो आपकी array में कौन सी वाली index की मैं बात कर रही हूँ, so not an address pointer. So you are going to do a separate implementation of the deck ADT, and so आप basically queue का implementation copy paste करना है और उसके अंदर ये दो चीजें आपने add कर देनी है. In your grading you are going to आपकी एक array based queue check की जाएगी, एक आपका simulation check किया जाएगा और एक आपका deck check किया जाएगा. Template implementation is optional, so you can actually get this done with just an integer implementation, as we saw in our algorithm. So we are done here, and questions आप लोग पूछ लो. I know this is the first time you've probably done a simulation, and it's a little bit of a confusing concept when you do it for the first time. So if you have any questions over here, so let me know. Let me open the algorithm. This is your queue algorithm. So do you have any questions? मैम आगे जाइएगा प्लीज, वहाँ पे जहाँ पे वो डेटा के नाम है सैंपल रन जो हुआ था, ये वाला. हाँ जी. अब ये तो आपने बता दिया था कि ये वैल्यूज के नाम है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्या नाम है प्रोग्राम है, तो ये वैल्यूज मैच तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली. तो मैम मैं ये पूछना चाह रहा था अकॉर्डिंग टू आवर प्रोग्राम, अब अगर n हमारे पास 10 है तो व्हाट्स द मैक्स वी कुड हैव सर्व्ड, ऐसे अगर हम अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली देखें जब 1, 2 या 0 पीपल कुड कम इन एट अ टाइम. मैक्स जो हो सकते हैं वो 20 हैं, क्योंकि आपके पास जो वो है ना 10 के लिए 20 मैक्स हैं, बिकॉज आपके पास ये रिक्वायरमेंट है कि एट 0, 1 और 2 कंडीशन 25% ऑफ द टाइम 2 कस्टमर्स ऐड होंगे.
तो इट्स नॉट लाइकली कि 20 हो, क्योंकि वो सिर्फ 25% ऑफ द टाइम हो सकता है। लेकिन अगर 10 मिनट्स के लिए आप रन कर रहे हो और उन 10 मिनट्स में हर मिनट के ऊपर 2 ही रैंडम नंबर आता गया, या हर मिनट के ऊपर वही 2 रैंडम, वो वाला रैंडम नंबर आता गया जिसके ऊपर आप 2 ऐड कर रहे थे, तो एट द मैक्स फॉर अ 10 यू कैन गेट 20। लेकिन 20 भी काफी अनलाइकली होगा, लेकिन 20 से ज्यादा तो हो। बिल्कुल। और ये अवेलेबल वेट भी क्या है? जी, ये जो लिखा हुआ है AV_weight, अच्छा एवरेज वेट है। एवरेज वेट, दिस एवरेज वेट, तो मैम ये इंडिविजुअली एवरेज कैसे कैलकुलेट होगा? सारे के सारे आपके पास जो नंबर्स आ रहे होंगे ना, सो अब लूप ये आपका लगा हुआ है ना, दिस इज योर लूप। एवरी टाइम दैट यू DQ somebody, आपने यहाँ पर रखा हुआ है एक एवरेज वेट का, यहाँ पर एक वेरिएबल रखा होगा विच इज फॉर योर एवरेज वेट। और उस आपने बेसिकली ये करना है कि एवरी टाइम यू DQ somebody, तो एवरेज में आप यही करते हो ना कि जितनी एवरी इंडिविजुअल वेट, तो व्हेन यू आर रिमूविंग समबडी फ्रॉम द क्यू, हमने देखा था कि जब आप रिमूव कर रहे होते हो तो यू कैलकुलेट इसने वेट कितना किया, राइट। तो अगर आप लेट्स से 10th मिनट के ऊपर हो और आप एक ऐसे पर्सन को रिमूव कर रहे हो जो 2nd मिनट पर आया था, और वो आपको पता ऐसे चलेगा वो 2nd मिनट पे आया था, क्योंकि जब आप उसको रिमूव करोगे तो वो नंबर ही 2 निकलेगा, क्योंकि हम नंबर से कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हर कस्टमर का नंबर वो है जिस वक्त उसको आपने क्यू में डाला है। So they're leaving at 10, which means that they waited 8 minutes. तो आपके पास एक वेरिएबल होगा जिसमें आप कह रहे होगे कि दिस इज द एवरी टाइम यू DQ somebody, तो आप अपने DQ कस्टमर का नंबर प्लस प्लस कर दोगे, सो यू विल नो एक कस्टमर आया, अब 2 आए हैं, अब 4 हो गए हैं, अब 6 हो गए हैं, 7 हो गए, एंड सो ऑन। सो एट द एंड यू विल नो कि 7 कस्टमर्स आपने सर्व किए थे। एंड इन एडिशन व्हाट यू विल बी डूइंग इज, इस इंक्रीमेंट के साथ साथ वो जो वेट टाइम है हर पर्सन का, वो आप इसमें ऐड, वो एक और वेरिएबल में ऐड करते जा रहे होगे। सो किसी ने 1 मिनट वेट किया होगा, फिर किसी ने 8 मिनट्स वेट किया होगा, फिर किसी ने 2 मिनट्स वेट किया होगा। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, इस सारे को टोटल कर दोगे, लेट्स से वो 10 हो गया। अब ये मैं अगेन आई एम मेकिंग द फिगर्स अप, और आपके पास यहाँ पर द नंबर ऑफ कस्टमर्स यू सर्व वो 7 हो गया, एंड यू आर जस्ट गोइंग टू डू दिस। सो एट द एंड यू आर गोइंग टू बी एबल टू कैलकुलेट एवरीथिंग। तो आपके पास सही यहाँ कहा पर आपने। ये सारे वेरिएबल्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, जिनको आपने यहाँ पर अपडेट करते जाना है। जो क्यूमुलेटिव वैल्यूज है ना, वो लूप के बाहर आके आपने एक दफा कैलकुलेट कर लेना। सही है मैम, समझ गया। Does anybody else have a question? उसका सारा फ्रेमवर्क बना के आपको दिया हुआ है, सो यू डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट दिस। लेकिन एक दफा आप इसके अंदर आ जाओ तो ये चीजें आपने थोड़ी सी फिगर आउट करनी है कि ये कैलकुलेट कैसे करना है। the key thing to remember is just this, कि आपका ये जो लूप है, इस लूप का एक आइटरेशन represents 1 minute of passage of time, और आपका जो क्यू बन रहा है उसमें जो कस्टमर्स आ रहे हैं, कस्टमर्स के लिए, हर कस्टमर के लिए आपने उसकी एंट्री का नंबर डालना है। So if the first customer enters at 1 minute, you're going to see this. सेकेंड मिनट पर कोई भी नहीं एंटर होता, थर्ड पे कोई नहीं होता, फोर्थ के ऊपर अगर 2 लोग एंटर हो जाते हैं तो यू आर गोइंग टू सी दिस इन द लूप। 5th मिनट के ऊपर भी कोई नहीं होता, और फिर 6th मिनट के ऊपर एक होता है, तो यू आर गोइंग टू सी दिस इनसाइड योर क्यू। एंड देन व्हेन यू से DQ, तो उसका मतलब है ये वाला पर्सन निकल गया, फिर ये वाला पर्सन निकल गया, एंड सो ऑन। एंड योर रिक्वायरमेंट से कि हर आइटरेशन में एक पर्सन निकालना है अगर वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये भी फ्रंट और रेयर के थ्रू चल रहा है ना? ये तो फ्रंट और रेयर के थ्रू चल रहा है। जो ये क्यू और डी क्यू के थ्रू चल रहा है, वो जो हमने डेक किया ना वो बाद में किया है। सो डेक जो है वो तो सो दिस इज लिटरली लाइक अ रियल क्यू, क्योंकि जब आप चेकआउट काउंटर के ऊपर भी क्यू बना होता है तो इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो पर्सन पहले आएगा उसी को आपने सर्व करना है। तो इसको सिमुलेट करने के लिए हमने स्टैंडर्ड वाला क्यू इस्तेमाल करना है, जो डेक दिया हुआ है उसके आगे है। तो वंस यू हैव डन दिस, देन मॉडिफाई योर क्यू, या फिर इसको सेपरेट ही रखो ताकि आप मिक्सअप ना करो दो चीजें। डेक के अंदर हम अलग क्लास बनाएंगे या एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर ये क्या नाम है फंक्शन डाल देंगे? इसी के अंदर ना, बल्कि इसके अंदर शायद लिखा हुआ है।
ये इसके अंदर डाले हुए हैं। ये वाले जो दो फंक्शंस है ना, ये एक्चुअली डेक के हैं। ये जो दो फंक्शन है ना, ये एक्चुअली डेक के हैं। सो दिस इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ द फंक्शंस। और मैम ये इस फुल इस केस में चल सकता है? क्या चीज? इस फुल आवाज नहीं क्लियर आई थी। ये जो इस फुल लिखा हुआ है, हाँ जी, इस फुल का पूछ रहा हूँ मैं आपसे, इस फुल चलेगा यहाँ पे? इस फुल फॉर द एरे इम्प्लीमेंटेशन यस, ठीक है। फॉर योर कस्टमर इम्प्लीमेंटेशन आपने करना है कि एरे को इतना बड़ा रखना है कि लेट्स से कि अगर आप अज्यूम कर रहे हो कि मैंने मैक्सिमम एन जो इस वक्त जिसके ऊपर काम करना है ना, वो अगर 100 है, तो अपनी एरे ही ऐसे सेट करो कि वो इस फुल के ऊपर कभी आए ना। So in your कट गई थी simulation, आपकी 100 के बाद। you don't have a full queue. ठीक है, आपकी सिमुलेशन में क्यू फुल नहीं हो सकता, लेकिन आपकी एरे फुल हो सकती है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि अपनी एरे को पहले ही उतना बड़ा रखो कि वो फुल ना हो। सो लेट्स से कि वी आर रनिंग दिस फॉर n इज इक्वल टू 50। n इज इक्वल टू 50 के अंदर मैक्स कस्टमर्स कितने आ सकते हैं? मल्टीप्लाइड बाय 2, सो 100 आ सकते हैं। तो इसको सेफ रखने के लिए यू कैन से कि 100 से भी थोड़े से ऊपर रख लेते हैं, इवन दो यू नो कि 100 होने का चांस जो है वो बहुत कम है। तो इफ यू आर डूइंग 50, तो लाइक 200 इज अ सेफ वैल्यू। वो क्यू कभी खत्म नहीं होगा, फुल नहीं होगा आपका, वो एरे कभी फुल नहीं होगी आपकी। सो योर सिम्युलेटेड कस्टमर काउंटर वाली क्यू जो है वो फुल नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि आपकी जिसके ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो वो फुल हो सकती है, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू सेट इट अप इन अ वे कि वो फुल ना हो। ठीक, तो कैन आई मैम तो shut कोड तो slide? एक ही लिखा हुआ है ना आपने? जी, मैं कह रहा हूँ कोड तो हमने एक ही लिखा हुआ है ना। अब जैसे अगर हम वो रन टाइम के ऊपर जाके अगर न्यू के थ्रू एरे को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, जी जी तो मैंने उसे साइज देना है जब, जी जी मैं उससे मैक्स नंबर के अकॉर्डिंग साइज दूंगा ना, एज इन ये मैक्स साइज दूंगा ना। यस यस, कंस्ट्रक्टर में इस जगह पर। बिल्कुल। तो मैं अब मुझे कैसे पता होगा कि n इज इक्वल टू 50, मतलब वो जो यूजर बाद में आ रहा है सिमुलेशन के टाइम, वो 50 के अकॉर्डिंग आ रहा है और मैंने उसको 100 या 200 इनिशियली राना रन टाइम पे दे देना है। राना आपने खुद ही करनी है ना, राना आपने खुद करनी है। तो आप खुद से एक्चुअली आप इवन रन टाइम पर आप कर सकते हो कि आप पहले यूजर से पूछ लो n कितना रखना है, और फिर खुद से आप क्यू का साइज जो है वो n मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो। हाँ, ये किया जा सकता है, ऐसे सही कर। है। लेकिन इनिशियली ये जो एरे बनानी है हमने, इसके अंदर साइज हमने क्या नाम है n रखना है या मैक्स साइज रखना है? मैक्स साइज, मैक्स साइज होना चाहिए। मैक्स साइज, ठीक है। उसने मैक्स साइज रखा हुआ है, मतलब आपकी इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन जो इधर लिखा हुआ मैक्स साइज लिखा हुआ। ठीक है मैम, समझ गया। ठीक है, कैन आई क्लोज द स्लाइड्स if there is no further question? जी मैम। So I will do both attendances. सबकी मैं लगा दूंगी because there are a lot of you missing today because there is some midterm exam going on. So मैं attendance सबकी mark कर देती हूँ. So if you don't have any other question, you are free to leave. मैम मेरा एक क्वेश्चन है वो स्टार्ट वाली असाइनमेंट का। मैंने सारा प्रोग्राम कर लिया है, बट आई डिडंट नोटिस कि आपने एक मेन फाइल भी साथ में दी हुई है कि अकॉर्डिंग टू उसके रन करो। तो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि डू आई हैव टू रीडू इट विद दैट के इज माइन फाइन? क्या नहीं किया हुआ था, मुझे समझ नहीं आई। मतलब मैंने अपने से सारा अकॉर्डिंग टू माय ओन प्रोग्राम मेन बना लिया, बट लाइक आपने एक मेन फाइल अपलोड की हुई है कि लाइक यूज दैट फॉर द स्टैक वाला असाइनमेंट। इसको चेक कर लेने दो मैंने क्या दिया हुआ। हाँ श्योर। So I was just wondering कि do I मतलब make it according to that या would my main work? ये जो मैंने console application dot cpp दी हुई है जी बिल्कुल। string वाली जी if you've done it on your own लेकिन वो accurate है तो it's fine.
हाँ, it is working बस ठीक, using मतलब my own code. बस ठीक है. मैम मिड टर्म के मार्क्स कब तक अपलोड होंगे? मिड टर्म के मार्क्स मैंने अपलोड कर दिए. मैम अगर मिड टर्म के मार्क्स से सेटिस्फाइड ना हो तो अभी is the time to ask me. अभी जो बोल रहा है उसकी मुझे आवाज नहीं आ रही. भाई Let me just mark attendance and then you can let me know. जी. नहीं मैम, आई रीचेक मैम, मैं कंफर्म कर लूं क्योंकि मुझे लगता है कि आई मार्क्स इन पोर्शन जो मर्ज वाला पोर्शन था, बट मैम आई कंफर्म और फिर मैं को मेल करके बताऊंगा. अभी पूछो. अगर आप मैम अभी कंफर्म दोबारा करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा मैम. अभी देख लो. मैम मेल पे नहीं हो सकता? जी नहीं, मेल पे नहीं हो सकता? नहीं अभी कर लो because I've just checked them so I remember what the issues were. मुझे फिर सारा ऑल ओवर देखना पड़ेगा. एक्सक्यूज मी मैम. जी. मैम ये जो प्रिंट और रिवर्स प्रिंट है, ये मैंने प्रिंट किया हुआ है. मैंने मेरा से मर्ज का फंक्शन मेन में कॉल नहीं हुआ था, तो इसमें एक एक मार्क्स मिला हुआ है. आप देख सकती हैं दोबारा? मैंने उस पर कमेंट डाला. नो मैम. Let me see. सब पे एक एक मार्क है. कमेंट डाले मैं. For most of them मैंने कमेंट डाले मैं, but let me see. मैम. नो मैम, मेरे पे नहीं है. मैम हमारी स्टैक की असाइनमेंट का वाइवा कब होगा? आप लोगों का डेडलाइन क्या है फजीला? मैम मंडे आ रही है. फिर then when we come back. ओके मैम, थैंक यू. मैम इस असाइनमेंट की सबमिशन कब है? असाइनमेंट चेक की When we come back about a week or so. मैम लाइक 1 week से ज्यादा थोड़ा सा हाँ, दूंगी आपको. 1 वीक कम है ज्यादा है? नहीं 1 week से थोड़ा ऊपर दूंगी ताकि you come back, you get your stack checked and then you will get this checked. मैम देखे ना, इस वीकेंड 9th होगी तो नेक्स्ट वीकेंड 16th है, उसका नेक्स्ट वीकेंड 23rd है. 24th आप दे दें बेशक, 2 वीक्स हो जाएंगे, ऐसा 2 वीकेंड्स हमें मिल जाएंगे. वरना पहले रखना है. So what this is going to depend upon is when we come back, if I have a quiz in the first week, then I would want कि आप लोग पहले से कर लो. But वो मैं date उसकी रख देती हूँ, but make sure कि if we have a quiz when we come back, तो you're prepared for it. Most likely I'll set up a quiz for stack and queue together when we're back from the break. But date मैं रख लूँगी, ठीक है? 2 weeks is fine. इसमें फाइलिंग भी है, ठीक है?
अच्छा, मैं दानिश का कोड देख रही हूँ। जी मैम। दानिश आपका तो टेल चेंज हो रहा है कोड में। यू आर चेंजिंग द, मैं दिखा देती हूँ, ये देखो, कैन यू सी दिस? दिस इज एक्चुअली वर्स देन आई थॉट इट वाज। आपने लिस्ट ही चेंज कर दी प्रिंट में। ओके ओके। लिस्ट खराब हो गई आपकी। तो नो मार्क्स? इसको मैं रीचेक करूंगी तो ये कम मार्क्स हो जाएंगे। अच्छा ओके मैम। एनीबॉडी एल्स? मैम मेरा है कोड, अगर आप देखना चाहें। आपने देख लिया? मैं खोल देती हूँ। किसको करना है आपने चेक? मैम मेरे हिसाब से ना मैम, मेरा मतलब हिसाब बहुत कमजोर है, लेकिन आई थिंक कि मैम मर्ज में नंबर जो है ना मैम वो 0 नहीं बनते 5 में से। 0 लगे हुए हैं? तो जी मैम। देखिए, ये आपका कोड है ना? दिस इज नॉट एल। जी मैम। जी मैम, इससे नीचे है मैम, ये merge में। अच्छा, मैंने कमेंट लिखा हुआ है आपके कोड में। एक सेकंड, लेट मी जस्ट चेक माय स्प्रेडशीट। दिस इज नॉट मैम एल। आपने लिखा है कि रन करने के बाद क्रैश हो जाता है कोड, बट मर्ज में मैम थोड़े से ज्यादा गलत। नहीं, मैंने क्रैश के इतने ज्यादा मार्क्स नहीं काटे हुए। मैंने इतने ज्यादा मार्क्स तब काटे हुए जब समथिंग स्ट्रेंज इज गोइंग ऑन। या तो मुझे आप बता दो ये रन कैसे कर रहे हैं। टेक स्क्रीनशॉट करो और मुझे अपना ड्रॉ करके दिखा दो, बिकॉज ये रन नहीं कर रहा तो आई हैव टू चेक अदरवाइज। मैं आपको दे रही हूँ, करो स्क्रीनशॉट। डू यू हैव अ कॉपी ऑफ द कोड? जी मैम। जी, अब मुझे इसको ड्राई रन करके दिखा दो, सिंस इट्स नॉट। जी सॉरी मैम। आपका तो क्रैश भी नहीं हो रहा। मैम आपने लिखा हुआ है यही, मैं कंफ्यूज हूँ मैम। मैंने कहा चले क्रैश अगर हो सकता है आपके पास हो रहा हो, बट मैम मर्ज के थोड़े से नंबर जो हैं वो मुझे थोड़े से हुआ है मैम कि मर्ज के 0 नहीं बनते Why 5 is में it से। crashing with me then? ये dev है? Is this dev? Not is? dev में काम किया हुआ है आपने? मैम ऐसे कोड विजुअल स्टूडियो में किया था मैंने, ये मैंने अभी टेम्परेरीली यहाँ पे खोला है कोड। अभी मैंने क्योंकि dev सारे errors नहीं पकड़ता, that is why it's not crashing. वहां से सबमिशन मैम विजुअल स्टूडियो पे भी क्रैकिन मेरा, लेकिन क्रैश भी नहीं किया
नोरेज आप एग्जिट करके वापस आओ और मुझे इसको ड्राई रन करके दिखाओ, बिकॉज ये मेरे पास क्रैश कर रहा है। मर्ज लिस्ट को ये मैं एग्जिट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपकी आवाज ब्रेक कर रही है, सो एग्जिट करके वापस आओ और उसके बाद मुझे इसको डेमो कर, इसको लाइक समझाओ कि कैसे हो रही है। मैं मीटिंग दोबारा ज्वाइन करूं? जी, मीटिंग से बाहर जाके वापस आओ बिकॉज आपकी आवाज इज ब्रेकिंग अप। ओके अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम तलाल। मैम आपने इनको कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स को? नहीं, we're done. Some one student wants a review of the midterm, तो मैं उसके लिए बैठी। तो इस बार डन, मैंने इनको असाइनमेंट दी, मैं अपलोड कर देती हूँ, आप देख लेना। मैम वो क्यों असाइनमेंट दी होगी ना आपने, वो कस्टमर सिमुलेशन की क्यों? असाइनमेंट दी है तलाल, इट्स अ लिटिल बिट चेंज्ड फ्रॉम व्हाट आई गिव लास्ट सेमेस्टर के मैंने इनको एरे की इम्प्लीमेंटेशन से क्यों दिया, सो दैट इज चेंज्ड। ठीक है, वो सर्कुलर एरे के साथ होगी वो। सर्कुलर एरे से होगी। एंड सेकंड थिंग इज लास्ट टाइम आई आस्क्ड ऑल ऑफ यू टू enter all of your trials into an Excel file, लेकिन इनको मैंने कहा है कि टेक्स्ट फाइल के अंदर डालें। मैं इसको अपलोड करती हूँ, आप देख लो अभी। ठीक है मैम। मैम हैव यू मार्क द अटेंडेंस? जी, अटेंडेंस मैं कर दूंगी सबकी मार्क, सो डोंट स्टे अराउंड फॉर अटेंडेंस। अटेंडेंस सबकी मार्क हो जाएगी बिकॉज देयर इज अ मिड टर्म गोइंग ऑन एंड सम ऑफ यू आर मिसिंग फॉर दैट, तो अटेंडेंस सबकी मार्क हो रही है। आई एम जस्ट सिटिंग हियर बिकॉज नॉरेज अपना वो करा रहा था, रिव्यू करा रहा था। अदरवाइज क्लास इज डन, अटेंडेंस इज डन। टेक्स्ट फाइल में सेम तरीके से ही क्या नाम है फाइल राइट होती है, कोई डिफरेंस है? अभी जब आप लोग जो टेक्स्ट फाइल लिख रहे हो ना, वो मैंने जान के फॉर्मेट ऐसे कराई है कि आप उसको एक्सेल में भी खोल सकोगे। सो एक्सेल बेसिकली इज केपेबल ऑफ रीडिंग फाइल्स जो कि स्पेसेस या टैब से आपने ब्रेकअप की हुई और लाइनों में। सो यू जिस तरह से आप लिखोगे ना, तो आप उसको एक्सेल के अंदर खोल सकोगे। लास्ट सेमेस्टर मैंने उनको फाइलिंग से नहीं दी थी, मैंने उनको कहा था कि मैन्युअली टाइप इन करें। It's a bit slow. आप लोगों ने अभी फाइलिंग की भी है रिव्यू, so you just write directly into your text file. लेकिन वो text file क्योंकि space और tab separated है, तो we can open it in Excel as well to read it. ठीक है। Focus. Let me just make the change. नॉरेज आप स्क्रीन शेयर कर लो ताकि आप स्टार्ट कर दो। मैम 1 मिनट दें, मैं उसको ट्राई करूं विजुअल स्टूडियो में। जी
मैम अब तो कोड बिल्कुल ही नहीं चल रहा, क्रैश नहीं कर रहा मैम, लेकिन वो फाइल नहीं उठा रहा, पाथ्स नहीं उठा रहा, वो दूसरा वाला इशू आ रहा है। You can't check with dev because dev जो है just it like वो that's basically for beginners और वो बहुत सारे errors खुद ही से संभाल लेता है, so we can't check with dev. मैम विजुअल पे मैम मैंने तो सारा कोड विजुअल पे किया, बट इस वक्त मैम वो आई गेस मेरे से फाइल कहीं मिसप्लेस हो गई है, और जो मैंने सोर्स को डाउनलोड करके चला रहा हूँ तो वो चल नहीं रहा मैम, वो कह रहे कि पाथ नॉट स्पेसिफाइड। मैम वो पाथ वाला इशू दोबारा आ रहा है जो स्टार्टिंग में हमें आता था। Copy करके paste करते हैं। फिलहाल मैंने upload कर दिया, you can take a look at it. इसका deadline is like 2 weeks. ठीक है मैम, ये जो स्टैक वाली असाइनमेंट आपने इनको दी थी उसका तो अगले नेक्स्ट वीक है ना डेडलाइन? जी when we come back next week तो आप पहले week आप stack check करोगे, फिर अगले week आप queues check करोगे। ठीक है मैम। So एक इनका फाइलिंग डिफरेंट है, एक इनका एरे बेस्ड है, और तीसरा है कि इनको ऑपरेटर ओवरलोडिंग या कॉपी कंस्ट्रक्टर में से एक का ऑप्शन दिया हुआ है कि जस्ट दे हैव टू डू एनी वन ऑफ देम। ओके मैम। ये तो कॉपी पेस्ट पे भी नहीं मैम चल इसके रहा। कॉपी कंस्ट्रक्टर में है क्या ऐसा, मतलब सिंपली इंडेक्स टू इंडेक्स ही पेस्ट हो रहा है? इसके अंदर आपको ना नई एरे की नई मेमोरी एलोकेट करनी होगी। इट्स एन एरे जो कि डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी के साथ बन रही है, so you'll have to check कि मेरा साइज क्या है, उस साइज के लिए मेमोरी एलोकेट कराओ, फिर देखो कि मैंने वैल्यूज क्या रखी हुई हैं, वैल्यूज रेप्लिकेट करो, और फिर आपका जो फ्रंट और जो रेयर वाले इंडेक्सेस हैं उनको अपडेट करना होगा, हाँ जी ठीक हो so गया। that you have a copy of the कंपैरेटिवली इजीयर है। जी इसका सिंपल है, इसलिए पिछले वालों के अंदर मैंने वो ऑप्शनल रखा हुआ था, इसमें मैंने एक कह दिया कि कोई एक कर दो। it's just array की डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। मैम ये पता नहीं क्या क्यों इशू दे रहा है ये। मैम हालांकि मैंने पूरा कोड इस पे किया है और मैंने इसी पे रन करके भी देखा है, इनफैक्ट आपके पास भी रन होने के बाद क्रैश हो रहा होगा मैम, यहाँ पे तो रन ही नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम मैम। मैम एक छोटी सी चीज पूछनी थी आपसे। जी मैम जो स्टैक वाली असाइनमेंट है उसके लिए जो मेन मैम काम कर रहे हैं वो पोस्टफिक्स की इवैल्यूएशन है ना? स्टैक बनाने और पोस्टफिक्स पोस्टफिक्स की, इवैल्यूएशन करना। ठीक है मैम, बस वो ये कंफर्म करना था। इट्स अपलोडेड, आपने मुझे ईमेल किया, आई थॉट दैट मैंने अपलोड ही नहीं किया, और इट्स वो लिखा हुआ है पावर पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है। मैम वो मेरा लैपटॉप एक्चुअली खराब हुआ था तो वो मुझे ना शो नहीं था हो रहा फोन पे। मैं जब इसको करने की दूसरे लैपटॉप पे, भाई के लैपटॉप पे कर रही थी, गूगल क्लासरूम वहाँ पे नहीं खुला हुआ था, इसलिए तो मैंने देख लिया मैम, बस ये कंफर्म करना था। थैंक यू सो मच। जी नॉरियस कुछ हो रहा है? यूसी हो रही है सिर्फ, चल कुछ भी नहीं रहा मैम। किसी ओल्ड फाइल को उठा दो ना, मतलब अपनी पुरानी असाइनमेंट को आप चल रहा है क्या भी किया मैंने, असाइनमेंट पूरी रिमूव करके उसमें ट्राई किया। मैंने आपसे ड्राई रन कहा है ना, जस्ट ओपन अप द कोड एंड ड्रॉ द लिस्ट फॉर मी। क्रैश तो वैसे ही कर रहा है, मुझे ड्रॉ करके दिखा दो कि क्या हो रहा है। कोड खोलो और कोड के साथ मुझे ड्रॉ करके दिखा दो कि क्या हो रहा है। मार्क्स क्रैशिंग के नहीं कटे हुए, वो किसी और चीज के कटे हुए। नहीं भी चल रहा है या क्रैश भी कर रहा है तो आई स्टिल गिवन पार्शियल मार्क्स एज लॉन्ग एज योर लॉजिक इज करेक्ट। मैम ये है
मर्ज लिस्ट में। मैम इसमें कुछ भी मैंने मतलब कुछ दो लिस्ट मतलब बाहर से नहीं किया हुआ मैम, कुछ अजीब नहीं किया हुआ मैंने, सिंपल रखा हुआ है इसको बिल्कुल कि मतलब एक मैम आपको कैसे क्या बताऊं मैम, वो लिस्ट बनाओ ना, जैसे मैं लेक्चर में क्योंकि फंक्शन तो मैम बहुत सिंपल से है। वो लिस्ट अच्छी खासी लाइनें आपने लिखी हैं, वैसे दो तो नहीं लिस्ट बनाओ, एक ABCD की, एक 1 2 3 4 की, और फिर उनको मुझे मर्ज करके दिखाओ और 7 पॉइंटर्स मूव करके दिखाओ। ऊपर एनोटेशन का एक आ रहा होगा, एनोटेशन ऊपर कैसे लेके जाओगे तो एक एनोटेशन की टूल आ जाएगी, उधर से पेन पिक कर लो। डबल लिंक्स नहीं बनाने की जरूरत, क्योंकि मुझे पता है आपको लिंक्स क्या है, लेकिन जस्ट मेक द नोट्स, बॉक्सेस बना लो नोट्स के लिए। तो पहली लिस्ट में लिखो 1 2 3 4, so this is your calling one, और एक सेकंड लिस्ट बनाओ, इसके 2 के ऊपर कैसे कर, इसके 2, इस वाले के 2 पे कैसे कर दो। सेकंड लिस्ट में 2 एलिमेंट्स ही डालो बस, A B। और आपके ऊपर वाली लिस्ट में कर्सर जो है वो 2 पे पॉइंट कर रहा है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि क्या हो रहा है, टेम्प कहाँ जाएगा। मैम जब हम इन दोनों को जब हम मर्ज कर रहे हैं मैम, ये A और B फर्स्ट लिस्ट के आ रहे हैं, और जो लिस्ट ये वाली लिस्ट है ये एम्प्टी हो रही है जी, और ट्रेलर जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे A आ गया और यहाँ पे B आ गया, अगर तो कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। इसीलिए गलत हो गया आपका ना, कर्सर इधर रहना था और A और B 2 और 3 के बिटवीन आना था, इसलिए गलत है आपका। मैम एक मिनट, नॉलेज मतलब ऐसे था कि आपने जो आपका कर्सर 2 पे है ना, तो 2 के बाद A और B आना चाहिए था और कर्सर वहीं पर आना चाहिए था। एक मिनट मैम, एक मिनट दें, शायद मैंने कोड सही किया हो, एक मिनट भूल गया होगा मैम। अभी आपने मुझे बताया, बिल्कुल पता है, इस जो आपने मुझे बताया ना उससे लग रहा है आपको क्वेश्चन भी नहीं समझ आया। मैम क्वेश्चन सेकली लिंक लिस्ट का था ना, मैंने शायद आपको डबली बता दिया या सिंगली बता दिया। You're getting yourself into worse trouble, ये डबली लिंक लिस्ट है। वही मैम, मैंने आपको गलत लिंक बता दिया, असल में सेकली में करना था, सही कह रही हूँ। ठीक है, इसको बंद कर दो। ठीक है मैम। Anyone else? If anyone else is here. मैम एक और छोटी सी चीज पूछनी है। जी राफिया। मैम अगर किसी का मिड टर्म 0.5 से फेल हो रहा हो तो उसको वो 0.5 मिल जाएगा, मतलब अगर फाइनल में इनकेस जाके जरूरत पड़ी, वैसे तो इंशाल्लाह मैं ठीक कर लूंगी। फाइनल में जाके देख लेंगे। 0.5 you should not worry too much about the 0.5 as long as कि आप बाद में अराउंड इतने दे सको। आपके टेस्ट भी हैं, बहुत सारी चीजें और। You shouldn't worry about 0.5. मैम प्लीज एक एक्स्ट्रा, आपकी आवाज कट रही है राफिया। मैम एक क्विज एक्स्ट्रा रख लें अगर पॉसिबल। जी, let's see. I'll see. I'm planning के जब we come back to we do a quiz on Q and stack, ताकि हमारे पास थोड़े से क्विज हो। अभी तक हमारे पास एक ही हुआ है इसलिए। So let's see. ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। Anything else? एक मिनट
if you can hold on for 1 more minute. I am यहाँ holding पे on. कर्सर जहाँ पे खड़ा हुआ है उसके नेक्स्ट पे मैंने सॉरी मैम यहाँ पे कर्सर जहाँ पे खड़ा हुआ है उसके नेक्स्ट पे मैंने लिस्ट बी का हेडर दिया हुआ है अभी हमने ड्रॉ तो और कुछ और किया था. उसके बाद मैम मैं कंफ्यूज हो गया मैम, मैं भूल जाता हूँ, मैं फौरन करके भूल जाता हूँ हर चीज में। आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने कौन सा कहा बहुत था? गंदी मेमोरी है मैंने मेमोरी यूज करने के लिए नहीं कहा था. मैम। मैम ये कोड मुझे याद नहीं था ना मैम, और मुझे ये भी नहीं याद था कि सर्कली लिंक लिस्ट में था, मुझे बाद में याद आया मैम। सर्कल लेकिन नहीं मैम मैंने यहाँ पे भी ठीक किया हुआ है। It's not circle. It's not a circle. ठीक है मैं शायद कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं. थैंक यू मैम। दाफिज. ठीक है, Mohammed Huzaifa, I think you're just hanging in here वैसे. तलाल आपने कुछ पूछना? I just should I kick them out? जी मैम. मैम जी मैम मैं Huzaifa यहीं पे हूँ जी. आपने कुछ पूछना? मैम। चल रहा मुझे बॉल लैग हो रही है। नहीं मैम ठीक है, so we're done with class. I'm closing. ठीक है. जी तलाल. मैम जी मैम मैंने ये पूछना था, मैंने वो जब आपको सोल्यूशन भेजा था उसका मिड का चेक किया था आपने मैम? वाज इट फाइन? मैं अभी चेक करती हूँ तलाल. मैंने अभी इनके मिड टर्म्स अभी देखने खत्म किए. मैं आपका खोल के देखती हूँ. वो दो तरीके थे करने के, कि या तो आप कर सकते थे कि लिंक आपने आई थिंक मूव किए हैं नोट्स, है ना? मैम मैंने नई नोट्स बना के उस तरह से. ठीक है, दैट इज आल्सो फाइन. दैट इज ये आल्सो जैसा फाइन. दो तरीके हैं, कुछ लोग सब मिक्स किए हुए थे स्टूडेंट्स ने. दिस इज आपका वाला भी ठीक है. और कुछ लोगों ने ऐसे किया कि नोट नहीं बनाई, सिर्फ लिंक्स चेंज कर दिए कि नीचे वाले वो जो आपकी लिस्ट है ना उसके बस हेडर ट्रेलर को आगे करके वो नोट्स उठा के ऊपर रख दिए, कॉपीज नहीं बनाई. बट बोथ ऑफ देम आर करेक्ट. ठीक है आपने मैम. मुझे हाईएस्ट किसके मैम इनमें से? हाईएस्ट अब्दुल्ला जवाद के हैं मेरे ख्याल से. यू कैन सी. तलाल मुझे एक फीडबैक चाहिए आपसे. फातिमा जावेद के किस तरह से गए हैं इवैल्यूएशंस? अक्सर दफा मैंने देखा है मैम. एक सेकंड है मैम. आपकी आवाज ना ऊपर नीचे हो रही है. एग्जिट करके वापस आओ तलाल. कहते हैं फातिमा जावेद. जी मैम आवाज आ रही है मेरी? जी तलाल मेरी भी क्लियर आ रही है. मैं अपनी इंटरनेट खराब है. जी मैम आपकी क्लियर आ रही है. आई वाज आस्किंग मैम व्हाट. जी मैम फातिमा जावेद के ऊपर ना मुझे शुरू दिन से बहुत इश्यूज आ रहे थे ट्रस्ट के, कि ना मतलब मुझे नहीं लगता था कि खुद असाइनमेंट अपनी करती है. फिर ना मैंने हसन से पूछा, क्योंकि हसन ने इनकी प्रोबेबिलिटी में टीएशिप की थी, तो ही टोल्ड मी दैट शी इज ओके. लेकिन अभी मैंने जब ना इसकी लिंक लिस्ट की असाइनमेंट देखी ना मैम, सारा कोड इसने जो है ना लग रहा था कि बुक से उठाया हुआ था.
अब मैं क्योंकि मैंने अभी मार्किंग इसलिए फाइनलाइज नहीं की क्योंकि मैं यही चीज़ें सर्च करनी थी। मैंने फातिमा जावेद को रखा हुआ है क्योंकि मैम इसमें सारा कोड जो है ना लग रहा था कि किसने कहीं से उठाया हुआ है। इवन ठीक कि मैं आपको सेंड करूँगा तो बिल्कुल उसके सिंटैक्सेस बुक वाले होंगे। वो मैम वो चेक स्टडीज़ के ऊपर मेरे ख्याल से उसने वहाँ से लिया होगा कि वहाँ पे मैम वो सब्सक्रिप्शन मांगते हैं, वहाँ पे कोड इससे सेंड से मिलता नहीं। ठीक है। नहीं, ये काफी कॉमन असाइनमेंट्स हैं, इनकी सॉल्यूशंस मिल जाती हैं लोगों को। तो जिसने नहीं प्रैक्टिस, मतलब जो लोग खुद कर रहे हैं ना, वो जेन्युइनली वो करते हैं जिनको खुद प्रैक्टिस, जिनको लगता है कि उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए। बट जिनको मिल जाएगी सोल्यूशन, वो सोल्यूशन ही आपको छाप के दे देंगे। बट चलो ठीक है, यस मैम। ठीक है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स में मैम मैं उसके नंबर ना डिडक्ट करूँ फातिमा के? अगर आप कोई दिखा सकते हो ना कि ये चीज़ है, जो कि अगर कोई इस तरह की चीज़ है ना, जैसे इनको फाइलिंग वगैरह नहीं आती, फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी नहीं करनी आती, और वो उधर से सेट प्रिसिजन या ऐसी चीज़ को यूज़ की हुई है, तो मुझे एक दफ़ा दिखा के तो फिर कैंसिल कर देना। लेकिन वाइवा कैसे कर, इज शी एबल टू, डज शी नो व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट ड्यूरिंग द वाइवा? मैम मतलब वो वाइवा देते वक्त भी शी वाज लाइक कि मैम ने हमें ऐसे कराया है, फिर देन शी वाज लाइक ओके नेवर माइंड नेवर माइंड। तो मतलब बट शी समहाउ मैनेज्ड कि उसने सही कर लिया था वाइवा फातिमा ने। अच्छा, चलो देखते हैं, आप देख लो। अगर आपको कुछ बहुत अगेन एक्चुअली ना ट्राई टू डू दिस, अगर आपको लगता है ना आप किसी तरह से गलत प्रूव कर सकते हो कि, लेकिन वो मुश्किल होगा बिकॉज यू आर सेइंग वो पूरी की पूरी उठाई हुई है। यस मैम। मैम मतलब कि मुझे मिल भी नहीं रहा मैम, वो मतलब ना वो चेक स्टडी के ऊपर वो मतलब कि सोल्यूशन है उधर, लेकिन वो कहते हैं आप साफ है मैं सब्सक्रिप्शन पे करो पहले, इस तरह से कुछ है। फिलहाल वेट करो, मैं आपको सोल्यूशन भेजती हूँ। एक मिनट, आई थिंक आई हैव देम। लेट मी चेक, मेरे पास होनी चाहिए। मैम बहुत सारे बच्चों का मैंने कैसी तरह प्लेजरिज्म छोड़ा मैम कुछ का तो अब जैसे वो दानिश का था मैम, उसको तो वाइवा इतना क्लियर पकड़ा गया था वाइवा से वो, क्योंकि वाइवा के अंदर वो कुछ और शो कर रहा था, कोड के अंदर वो कुछ और शो कर रहा था। यार फिर भी कहा उसको नंबर दे देना ताकि फिर ये ना हो कि जो है ना वो बाद में हमसे आके बहस करे। मैं उसके नंबर में दो मार्क्स दे दूंगा उसको मैं फिर भी दानिश को। अगर वो आगे बहस करेगा तो उसको मैं बोलूंगा कि आपको जो नंबर बनते हैं मुझे मेरा वैना को फिर भी 2 नंबर दे दूंगा। ऐसे कुछ कर लो, जस्ट सी ट्राई कि अगर ना, जस्ट सी कि आप किसी अगर इस तरह से कर सकते हो ना कि आपने ये वाली चीज गलत की हुई है, एंड ऑफन टाइम्स थोड़ी सी आप टेक्निकल चीज बोलोगे ना तो उनको समझ भी नहीं आएगी कि क्या है। अभी नॉरेस का बिल्कुल सही हुआ था, बट उसको पता ही नहीं था कि क्या लिखा हुआ है। मैम वो तो कंफ्यूज ही हो गया था मैम बिल्कुल, कि वो कह रहा था कि ये आपने सर्कुलर लिंक लिस्ट पूछी, TW लिंक लिस्ट में। तो ये साइन मैम मेरा इंटरव्यू हुआ था उसका UX वाले का। अच्छा, कैसा गया? मैम मैंने समझा तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिया था मैम। आई फिगर आउट अरूज भी है उधर मैम, हमारी जो जी सीनियर थी। जी, उसी ने कराया था मुझे कोर्स, अच्छा तो मैं उसी के मतलब थ्रू। मैंने सारा उनको, क्योंकि शी वाज लाइक आस्किंग मी द कॉन्सेप्ट्स, तो मुझे उन्होंने बोला कि आपको आइडिया है कि HCI में डॉक्यूमेंटेशन का करते हैं। मैंने कहा अभी तो हम ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन पे पहुंचे हैं, मुझे प्रायर नॉलेज है। तो मुझे उन्होंने पूछा कि आपने SRE में कैसे किया था, मैंने बताया था मैंने हर यूज़ केस के हिसाब से प्रोटोटाइप बनाया था। और देन शी वाज आस्किंग कि आपने बैल्जामिक वायरफ्रेम के अलावा कोई और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है फॉर कोडिंग? मैंने कहा यस, लेकिन उसमें सिर्फ ये था कि मैं अपनी फंक्शनलिटीज में ऑटोमेट नहीं कर पा रहा था। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू दिया था उसके अंदर मैं मामला को, और इसके अंदर बस ये था कि मैंने अपनी फंक्शनलिटी सारी ऑटोमेट कर दी थी। तो दिस वाज आई फाउंड इट बेटर इन द अदर वन। मैंने वो सारा एक्सप्लेन तो कर दिया मैम, लेकिन ना वन उनमें से किसी एक ने मुझसे पूछा कि आपने मास्टर्स करना है? तो मैंने कहा यस मेरा प्लान तो है। तो उन्होंने कहा आपने किस में करना है? मैंने कहा मैंने AI में करना है। आई नेवर लाइड अबाउट इट, क्योंकि मैं क्यों झूठ बोलूँ उसमें। एंड ठीक। मुझे ऐसा लगा उनके, मुझे उससे ऐसा कहीं ना कहीं शायद उस वजह से ना दे माइट नॉट एक्सेप्ट, क्योंकि देन फायजा वाज देयर, शी वाज सेइंग दैट इस द पर्पस ऑफ दिस competition was to basically hire people. We are actually hiring teammates. हाँ हाँ, मतलब मैंने यही बताया, मैंने अगर AI में मेरा मास्टर्स करने का प्लान है तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ना they might not accept, वो but let's डिपेंड see क्या करेगा होता है मैम। फिलहाल, डिपेंड करेगा कि उनके पास कैंडिडेट्स कैसे हैं।
बिकॉज कुछ ना कुछ प्लान तो हर एक का होगा ना, तो इट विल डिपेंड, काफी दफा ये लक के ऊपर डिपेंड करता है। समटाइम्स व्हेन यू आर हायरिंग तो आपको अगर लगता है कि वो कैंडिडेट इतना अच्छा है कि आप उसको शॉर्ट टर्म में भी उससे आपको फायदा होगा तो फिर, एंड समटाइम्स यू वांट अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट कि हमारे पास ये अगर रिसोर्स हो और ये एमएस भी कर रहा है, बेशक वो एआई में कर रहा है, तो वी कैन फिट देम समवेयर। तो वो डिपेंड करेगा कि उनका अपना फौरी मकसद क्या है, और दूसरा डिपेंड करेगा कि दूसरे लोग जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनके किस किस्म की चीजें। तो इट्स मैम फाइन। मतलब मेरा यही था कि मैं अगर मैं यूएक्स की जॉब में जा रहा हूँ, मैं अगर एआई में मास्टर्स कर रहा हूँ मैम, मतलब कि एक मतलब डिफरेंट है, तो मतलब कि कोई वो तो नहीं होता इससे ना मैम, और इट डज दैट मेक्स एन इम्पैक्ट अगर मैं एआई के लिए मास्टर परस्यू कर रहा हूँ अपना, और मैं अगर यूएक्स की जॉब कर रहा हूँ। उससे कोई फर्क इतना ज्यादा नहीं पड़ता एज सच के, इट्स एनी जॉब एक्सपीरियंस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगर तो Yes, आपको कोई डेटा साइंस या एआई वाला ही इंटर्नशिप मिल जाता है या जॉब मिल जाता है तो ऑब्वियसली दैट इज मोर रेलेवेंट। लेकिन अगर आप एचसीआई वाला भी कर रहे हो ना तो उससे बहुत ज्यादा इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आप, आपका मकसद ही ये था, आर यू टेकिंग अ गैप टू डू द वर्क, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो बहुत सारी चीजें फैक्टर इन करती हैं। इट्स मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि ना मेरा अभी और नाउ मैं करीब बैचलर्स के बाद मैंने थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मैं सोच रहा हूँ थोड़ा जॉब करूँ, देन आफ्टर सम टाइम मैं इंशाल्लाह मास्टर्स के लिए जाऊँगा अलॉन्ग विद माय जॉब। मैंने उनको ठीक ये है, बात बताई थी ठीक है। मैम, लेकिन देन क्योंकि उनको शायद ये लग रहा था कि मैं सिर्फ 8 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, मैंने उनको बताया मैं भी 6 सेमेस्टर का, आई एम सर्चिंग फॉर इंटर्नशिप्स ठीक मैम, है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोला मैम, उनको जो था मेरा मेरा क्योंकि प्लान है इंशाल्लाह इन समर्स आई विल गो फॉर इंटर्नशिप, तो मैंने उनको वही चीज़ बताई उनको। ठीक है। तो नहीं, लेट्स सी। एथिकली आपको बिल्कुल सारा कुछ ठीक बताना चाहिए, बिकॉज यू डोंट वांट कि वो जिस किस्म की इन्वेस्टमेंट अपने एम्प्लॉय पे प्लान कर रहे हैं ना उनको पता होना चाहिए। तो ये इतना मसला नहीं होता कि आप एमएस कर रहे हो, बिकॉज बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं और उनको पता होता है कि बेसिकली इस तरह से टर्नओवर होते जाना है। तो इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आप क्लियर रखो अपने प्लान। ठीक है मैम, और मैंने ये बोलना था मैम, ये जो स्टैक वाला जो हमारा जो उनका वाइवा होगा वो मैं इनसे किस तरह से लूँ, किस तरह से कंडक्ट करूँ वाइवा इनसे? पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन की बेसिस पे करूँ या स्टैक के ऑपरेशन की बेसिस पे करूँ, क्योंकि मैं भी ओवर द वीकेंड में इसके ऊपर काम करूँगा स्टैक और क्यूज। पोस्टस्क्रिप्ट को देख लेना, स्टैक तो फेयरली इजी है। स्टैक तो मेरे ख्याल से वो लोग भी जो छापा कर रहे हैं उनको आता ही होगा। तो तो लाइक मैम मैं पोस्ट फिक्स मतलब इस तरह से बताऊँ कि आप मुझे बताओ क्या क्या एलिमेंट्स पुश हो रहे हैं, पॉप हो रहे हैं, इस तरह से करके? जी, उनको कहना कि आपको जल्दी से पेपर पर ड्रॉ करके ना तो स्क्रीन पे दिखा दें। जिस तरह से लास्ट हम लिंक लिस्ट किया था। गिव देम एन एक्सप्रेशन। हाँ, अगर आपको लगता है वो ठीक गया था तो इसी तरह कर लो कि गिव देम एन एक्सप्रेशन। उनको कहो कि मुझे पेपर पे सॉल्व करके अभी या ईमेल कर दें, या आपको स्क्रीन पे ईमेल कर दें तो बेहतर है आपके रिकॉर्ड ईमेल कर में। देते हैं जी जी ईमेल मैम, कर दें और फिर उनको कहो यही वाला मुझे रन करके दिखाओ अपने। और मैम जो क्यूज का होगा, क्यूज का मैं उनसे वो क्योंकि एरेज की इम्प्लीमेंटेशन है तो मैं एक्सेल पे कर लूंगा जैसे मैंने एरेज में किया था। ठीक है, दिस इज व्हाट टाइम प्लान। ठीक है, तो मतलब मैं उनसे पूछूंगा कि अगर डी क्यू होगा तो फिर कहाँ पे पोजीशन जाएगी कर्सर ठीक है, की, क्योंकि इसमें फिर ठीक है। कर्सर की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है ना कर्सर जी सर्कुलर जी, के अंदर। जी जी। और इसमें वो भी है, इसमें ना वो भी है, डबल एंडेड वाला क्यू भी है, तो वो थोड़ा सा देख लेना क्योंकि आप लोगों को मैंने दिया नहीं था पिछली दफा। एरे मैम वाला, आपने दिया था, एरे वाले ने दिया था नहीं दिया आपने। था। तो वो थोड़ा सा देख लेना, यू माइट नीड के एक दो एग्जांपल्स आपने वर्कआउट करके रखे हो। जी जी मैम, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मैम वो सोल्यूशन अगर आपको मिले ना मुझे सेंड कर दीजिएगा सोल्यूशन वो फिलहाल वाला। मैंने आपको ईमेल कर दी है, जस्ट कीप देम केयरफुली क्योंकि ये टेक्स्ट बुक के सोल्यूशन हैं। जी मैम, मैं यही ढूंढ रहा था, सारे थैंक यू स्टूडेंट्स मैम। के पास हैं, सारे मेरे ख्याल से किसी एक दो स्टूडेंट्स के पास हैं तो उन्होंने स्प्रेड किए हैं, बट फॉर योर रेफरेंस यू कैन कीप देम। ठीक, अच्छा मैम अगर किसी बच्चे ने इसमें से कॉपी किया हो तो शुड आई प्लेजरिज्म? प्लेजरिज्म तो मतलब देखना कितना वाजिब है कॉपी ना किया फिर हुआ तो? है, देखना कितना कॉपी किया हुआ है। अगर ऐसी चीजें ना कि टैब्स भी सेम है और सारा कुछ सेम है, स्पेसिंग सेम है, कोई ऐसी चीज है, क्योंकि इसके अंदर ना इसने फॉर्मेटिंग में ऐसी चीजें, द थिंग दैट यू कैन कैच देम विद इज कि ये काफी एक्स्ट्रा चीजें करते हैं और मैंने सारी चीजें कही नहीं होती करने के लिए। जी वो समथिंग तो मैंने समथिंग लाइक फंसी को ही पकड़ा था उसके ऊपर। दैट, समथिंग लाइक दैट। यस
ठीक है मैम, मैं चेक कर लूंगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, अल्लाह। हाफिज। जी सुबह मैंने क्लास एंड कर दी थी। इफ यू जस्ट बैक टू अटेंड द क्लास तो वी आर डन। मैम आई हैड अ मीट सो दैट्स आई वाज नॉट एबल टू जॉइन, तो मेरी अटेंडेंस लगी है। अटेंडेंस मैंने सबकी लगा दी बिकॉज देयर वर क्वाइट अ फ्यू ऑफ यू हु हैड मिड टर्म, तो सबकी ओके लग मैम, गई। थैंक ओके मैम। ओके।